वाह मस्त। Emerge from darkness full of mystery, and iron and steel, the backbone of modern industries. So here we are presenting you a warm welcome from Group 1. So my members are, I am the leader Poonam Sahu, and these are my co-workers Devasmita Behera, Susi Saina Behera, Cecil Apatta and Bhaswati Bisoi. We all welcome you with a great SKC. So we all know an industrial system exists. Industrial system, the word system includes inputs, processing and outputs. And within this system there lies a history that we are all bound to know about. So one by one we will explain our topics, and in the last I am going to give you a conclusion. So input will be presented by Susi Saina Behera, processing will be presented by Devasmita Behera, output will be presented by Cecil Appat, and history will be presented by Bhaswati Bisoi. So let us start our concept. I hope you will enjoy this with full passion. My name is Sushri Vera and I am from Group 1. I will present about input. Iron industry is a feeder industry whose products are used as raw material for other industries. मतलब आयरन इंडस्ट्री ऐसे फीडर मतलब कि जो सारे इंडस्ट्री को मतलब आयरन इंडस्ट्री से प्रोवाइड करता है। जैसे कि मतलब आयरन इंडस्ट्री सारे इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल के हिसाब से सारा चीज़ प्रोड्यूस करता है, मतलब देता है। The inputs for the industry include raw materials such as iron ore, coal and limestone. मतलब इनपुट इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है, जैसे कि आयरन और कोल एंड लाइमस्टोन, एंड उसके साथ लेबर कैपिटल मतलब पैसे, साइट मतलब जगह जमीन या फिर ऐसे, and other infrastructure. The process of converting iron ore into steel involves many steps. आयरन और को स्टील में इन्वॉल्व करने के लिए बहुत सारे स्टेजेस चाहिए. The raw materials are obtained from deep mines. Raw material हमें deep mine से मिलते हैं. It undergoes many stages and it then refined. ये बहुत सारे स्टेज लेके जाते हैं और इसको रिफाइन भी करना पड़ता है. Steel is tough and it can easily be shaped and cut. स्टील बहुत टफ मतलब कि हार्ड होता है और ये उतने ही इजीली कट हो सकता है. Special alloys of steel can be made by adding some amount of other metals. Alloys मतलब एक चीज को एक चीज के साथ मिलाने के बाद जो चीज बनता है. And adding some amount मतलब उसमें जो अमाउंट एडिंग की जाएंगे, जैसे कि मेटल such as metal as aluminium, nickel and copper. मेटल, एल्यूमिनियम एंड निकल, कॉपर स्टील में मिलाए जाते हैं कुछ अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. Alloys give steel usual hardness, unusual hardness, nickel and copper. Unusual hardness means जो कि वो हार्डनेस हमें चाहिए नहीं पर वो हमें प्रोवाइड करता है. टफनेस मतलब हार्डनेस and ability to resist rust. A very good evening to one and all present over here. This is Devasmita Behera from class 8 going to present the processing of the iron and steel business. How the iron and steel are obtained by processing in the industries. After putting inputs in the industries, we will now discuss how it is processed in the industry.
some metals are processed, and then the iron and steel are produced. Smelting is the process where iron ore is heated up with the mineral with coal and limestone in an industrial oven to extract the iron. आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आयरन ओर के साथ कुछ मिनरल्स, कोल और लाइमस्टोन की जैसा उन्हें मिलाया जाता है एक ब्लास्ट फर्नेस में. Molten iron is purified and converted into steel in a basic oxygen furnace by adding alloy metals. Molten iron को प्यूरिफाई किया जाता है, मतलब उसे साफ जैसे फिल्टर की तरह किया जाता है और उसे कन्वर्ट किया जाता है स्टील को, इसमें कुछ अलॉय मेटल्स को ऐड करके. उसके बाद हम इधर दो प्रोसेस में देख रहे हैं, एक मेकिंग आयरन और दूसरा है प्राइमरी स्टील मेकिंग. स्टील कैसे बनते हैं और आयरन कैसे बनते हैं इस प्रोसेस में. To create pure steel, the products that go into it, lime, coke and iron ore must be made into iron. आयरन को बनाने के लिए हम जो मेटल्स ऐड करते हैं उनमें से कुछ है लाइम, कोक एंड आयरन. इन सब को ऐड करना ज़रूरी है ताकि हम एक्सट्रैक्ट कर सकें आयरन. These are all put into blast furnace and melted down to create what is called molten iron or hot metal. इन सबको ऐड किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में और जो प्रोडक्ट होता है उसे हम बोलते हैं मॉल्टन आयरन या उसे बोलते हैं मेल्टेड आयरन, हॉट मेटल. The iron still has many impurities at this point and they will have to be removed to ensure the metal is not brittle. इसमें भी आयरन की कुछ जैसे कि impurities बच के रह जाते हैं, उसके बाद उसे निकाला जाता है ताकि वो मेटल ब्रिटल ना हो. नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं कि प्राइमरी स्टील मेकिंग कैसे होती है. टू गेट द इम्प्योरिटीज आउट, द मॉल्टन मेटल इज इन्फ्यूज्ड विद स्क्रैप स्टील. ऑक्सीजन विल बी फोर्स्ड थ्रू द फर्नेस एज वेल व्हिच गेट्स आउट अ लॉट ऑफ कार्बन एंड अदर इम्प्योरिटीज. नेक्स्ट जो हम इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए मॉल्टन इन्फ्यूज करते कुछ स्क्रैप के स्टील मेटल के साथ. उसमें ऑक्सीजन उस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जाता है और उसमें हेल्प करने से for electric furnaces, electricity will be forced to the furnace and the same results can be achieved. जो वो होता है ऑक्सीजन फर्नेस में. जो इलेक्ट्रिसिटी वाला ब्लास्ट फर्नेस होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी ऐड की जाती है ताकि ये सेम प्रोसेस उसमें अचीव हो सके. आफ्टर दिस प्रोसेस हैज फिनिश्ड वी हैव रॉ स्टील. इस प्रोसेस के बाद, इन सब प्रोसेस के बाद हमारे पास रॉ स्टील प्रोडक्ट की तरह आती है. तो इधर मॉल्टन मैग्मा के लिए एक पिक्चर डायग्राम दिया गया है. ये था प्रोसेसिंग का पूरा फुल डेफिनेशन. थैंक यू एंड हैव अ चिल. Hello everyone, my name is Sejal and I am going to tell about output. I am Sejal and I am going to tell about the output of iron and steel industry. ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जो भी आउटपुट आता है वो डेली लाइफ में यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल एंड ऑल द थिंग्स अराउंड अस. और ये बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसे रॉ मटेरियल कंज्यूम करती है. तो इंडिया में बेसिकली छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड साउथ में तमिलनाडु, इसमें ज़्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है. थैंक यू. I am Ashwati Bishoy and I am going to tell you about the history of iron and steel industry. Iron and steel industry's history is a long and captivating story which took us about 4,000 years ago. In that time, there were small furnaces which only produce a small amount of iron, which is utilized for making more weapons and tools. The increase in the steel and iron industry was made by the development of blast furnace, in which the hydrosource or the hydropower is used to exert more pressure, which is used for smelting the iron ore and charcoal to make iron and steel. Iron and steel industry is one of the major source for India's economy. Thank you. Thank you, my teammates, for summarizing. I am here to summarize all of the points at once. So, iron and steel industry. The term industry is used, which means the large amount of product formed. In industry, the word comes system. What do I mean by system? It includes inputs, outputs, and processing. We all know iron industry is
is a feeder industry. Feeder. Then what comes a word called feeder. ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आउटपुट्स होते हैं, वो दूसरे इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल्स होते हैं. है ना बड़ी बात? Iron industry is a feeder industry whose products are used as raw materials of other industries. हम छोटे से लेकर बड़े चीज तक जहाँ भी आंखें घुमाए हमें आयरन और स्टील देखना ही होता है. देखो मेरे कपड़े में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं सेफ्टी पिन यूज करूंगी. सेफ्टी पिन वो किससे बनता है? वो बनता है आयरन स्टील से. मुझे कहाँ पर ट्रैवल करना है, मुझे कार, बाइसाइकिल, सीट, ट्रेन एक्सेट्रा का यूज करना होगा, वो किससे बनता है? वो भी आयरन एंड स्टील से बनता है. So, I'm going to tell iron and steel are known as the backbone of modern industry. Backbone. उससे हम रीढ़ की हड्डी क्यों बोलते हैं? क्या वो सही में रीढ़ की हड्डी है? तो हम कंपेयर करते हैं इंसानों से. इंसानों में जो ये वाला पोर्शन होता है वो उसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, क्या फिर बैकबोन कहा जाता है. उसे वो क्यों कहा जाता है? अगर बैकबोन नहीं होता तो इंसान आज झुका होता या फिर नीचे रेंग रहा होता. यहाँ तक कि रेंगने वाले जानवरों के पास भी बैकबोन है. वो क्या मदद करता है? वो हमें एक सहारा देता है जो कि हमारे जीवन भर लास्ट करता है. जिन लोगों के बैकबोन प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कितने प्रॉब्लम होता है. तो वैसे ही आयरन और स्टील इंडस्ट्री अगर नहीं होता तो शायद ये आज के पावरफुल इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं होती. इंडिया का या फिर पूरे वर्ल्ड का डेवलपमेंट नहीं होता. हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ए एरिया. रूरल एरियाज में ही लोग ज़्यादा एम करते हैं कि वो इंडस्ट्रीज को बसाए. क्यों? इंडस्ट्री एक ऐसा टर्म है जिसमें लेबर कैपिटल रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा जरूरत है. साइड रूरल एरिया में बहुत सारे मैदान होते हैं, हम वहाँ पर अपना इंडस्ट्री बसा सकते हैं. अब रूरल एरिया के लोग थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो हमें नहीं पता है, तो उनको वहाँ पर पास में लेबर मिलेगा. वो वहाँ पर काम करेंगे, नए एक्सपीरियंस सीखेंगे, जिससे उनके एरिया में डेवलपमेंट होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं. तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इसका क्या लेना देना है? जमशेदपुर का आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंडिया का पूरा सबसे पुराना और सबसे सक्सेसफुल इंडस्ट्री है. क्यों? टाटा स्टील का नाम तो आपने सुना ही होगा. उनकी जड़ें इतनी मजबूत होती है कि उनके प्रोडक्ट्स हम आज भी यूज करते आ रहे हैं. तो उसी तरह से हमने आयरन प्रोसेसिंग और आउटपुट के बारे में जाना. इनपुट में हमने देखा कि उन्होंने कैसे सारे चीज़ों को यूज करके एक लाभदायक चीज़ बनाया जिससे हम और इस्तेमाल कर सकते हैं. हमारे इनपुट में क्या क्या आया? 8 टन्स ऑफ कोल, जैसे कि फ्यूल, 1 टन ऑफ आयरन और जिसको हमें बनाना है, 1 टन ऑफ लाइमस्टोन जो कि उसके अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाता है. और इससे हमें क्या मिला? 1 टन ऑफ स्टील. स्टील क्या होता है? स्टील एक ऐसा मटेरियल है जो कि आयरन को दूसरे चीज़ों से आड़ करके बनाया जाता है. स्टील की डक्टिलिटी, स्टील को टफ हो सकता है, स्टील को हम वायर बना सकते हैं, सीट बना सकते हैं. आपने तो साइंस में पढ़ा ही होगा डक्टिलिटी, मालेबिलिटी एक्सेट्रा. तो स्टील की इतने सारे क्वालिटी है. आप देखना, अगर आपके पास बहुत सारे क्वालिटी है तो आप जहाँ भी जाओगे आपका नाम होगा ही होगा. तो वैसे ही स्टील में बहुत सारे क्वालिटी होने के कारण उसका हर जगह में इस्तेमाल किया जाता है. जैसे कि कंस्ट्रक्शन, ऑयल पाइपलाइन, शिप, ट्रक्स, हेवी मशीनरीज एक्सेट्रा. आपने एक पेंसिल यूज किया, पेंसिल में आयरन और स्टील का कोई अता पता नहीं, लेकिन उसको बनाने में उसको आयरन और स्टील की जरूरत पड़ी ही होगी. हेवी मशीनरीज एक्सेट्रा वो आयरन और स्टील के ही बनते हैं. हिस्ट्री ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, वो यहाँ पर बने कैसे, उनको क्या क्या जरूरत पड़ी. 1850 में लोगों ने देखा कि आयरन स्टील की हमें बहुत सख्त जरूरत है, तो उनका ज़्यादा होना बहुत लाभदायक की बात है. तो उन्होंने क्या किया? माइंस के पास अपना आयरन इंडस्ट्री बसाया और जहाँ पर पानी की क्षमता कम ना हो. लेकिन 1850 और 1950 के बीच में उन्होंने देखा कि उनको बेटर भी करना था ना, तो उन्होंने कोल फील्ड को देखा. कोल फील्ड में उन्हें ज़्यादा फ्यूल मिलेगा और वो ज़्यादा प्रोडक्शन भी कर सकते हैं. उन्होंने रेलवेज को देखा जहाँ पर उनका ट्रांसपोर्टेशन भी कम ना हो. फिर उन्होंने 1950 के बाद से शिप पोर्ट को देखा. शिप पोर्ट या फिर लार्ज एरिया जो कि शिप पोर्ट के पास है. उन्होंने ऐसा क्यों देखा? जापान जो है वो बहुत ज़्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स करता है, वो हम सबको पता है, लेकिन उसके सारे इंडस्ट्री सी पोर्ट के ही पास क्यों है?
जापान के पास कोई भी रॉ मटेरियल ज़्यादा अमाउंट में नहीं होते, तो वो इंडिया या फिर अदर कंटिनेंट से एक्सपोर्ट करते हैं सी पोर्ट में, जिनसे उनका ट्रांसपोर्टेशन भी चीपर होता है और उनको काफ़ी प्रॉफिट भी होता है। तो इसके साथ में एंड करना चाहूँगी कि एमर्ज फ्रॉम डार्कनेस एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, वो अंधकार से पैदा होता है, उस अंदर कितनी खूबियाँ है उसे हम शायद ही ना बता पाएं। आई एम आयरन एंड स्टील, मैं आयरन एंड स्टील हूँ, द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, मॉडर्न इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी हूँ। तो इससे मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करना चाहती हूँ। धन्यवाद एवं शुभ दिन। रुको वैसा नहीं। हाँ, उसको हटा दो।